अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद नज़रात शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं मौसीकार घराने। तेरे पीछे पीछे आना सा प्यार निभाना दिल लेने वाली है, आए दिल लेने वाली। बहुत शुक्रिया यार, बड़ी मेहरबानी। घड़ियाल दे वो निकाल दी मेरा प्यार आया तेरे पीछे पीछे। ये मेरा शो है या महफिल थिएटर है? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਪਹਿਲੇ। ये कौन है? ਇਹ ਜੀ ਮੋਹਨ ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੇ ਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਲਟਾ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਚੌਧਰੀ ਹੋਏਗਾ। तुम जब भी अंदर होगे, ਡਿਊ ਟੂ ਚੌਧਰੀ, तुम्हें जब भी सजा होगी, ਡਿਊ ਟੂ ਚੌਧਰੀ, तुम जब भी जलील होगे, ਡਿਊ ਟੂ ਚੌਧਰੀ, जब भी रुसवा होगे। ਡਿਊ ਟੂ ਚੌਧਰੀ। कैसी दिहाई मारी है तुझे हैं? भाई जी पता गल की है, इस बारी सिर्फ फलाई काम करना आया मैं। क्या वजह क्या है? ये चेंज ऑफ हार्ट्स कैसे हुई? सारा जो कोरोना वायरस है ना, मैं बहुत करीब तो जिंदगी ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੈਠਾ। अच्छा, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यार ये कौन है, बताते क्यों नहीं? ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। नहीं, वाकई लगता है जैसे कोई डिसेंट सा प्रोफेसर होता है। ਉਹ ਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਬਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਰੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਭਾਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਰਾਚੀੋਂ ਬਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा जनाब, पता गल की है, इस शो तो बाद तुसी अपने शो की रेटिंग देखनी है कि मोहन भाई के शो चाहे ने। प्लीज ड्रैग मत करो, बताओ ये कौन है जाते शरीफ? सर मैं दसना तुहानू, अजा कोरोना वायरस चलिया ना, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਥੱਥਾ ਵਾਂ ਯਾਰ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। कहाँ से आप? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। हाँ जी, क्या करते क्या है? सारे बहुत बड़े साइंसदान ने। भाई साइंसदान है, किस फील्ड के? न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। सारा कोरोना वायरस फैली है ना, हाँ जी। वो हाथ धोने नहीं ਹੁੰਦਾ, ਲਾਓ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। सैनिटाइजर, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। सैनिटाइजर बनाते हैं। हाँ जी, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 3-4 ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ सिर्फ ਮੇਰੇ ਕੋਲ है। सीधी सीधी सी चीज है, वो बेवकूफ सा ढोलकी वाला भी बना सकता है। सर मैं इनके बारे में जान चुका हूं, ये मोहन साहब के बारे में। ये बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं सर। सैनिटाइजर बनाने का जो फार्मूला इनके पास है ना, अच्छा, इतना हैवीली गार्डेड फार्मूला कोला ड्रिंक्स के पास नहीं है। देखो जी, इस प्रोडक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ, अच्छा। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं, आप सैनिटाइजर से कोरोना वायरस खत्म कर रहे हैं? ਇਹ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਨਰਸ ਹੋਣੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੇ ਜੀ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟicker ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਮੋਹਨ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ। अच्छा, 15 लाख इसका सीड मनी है, मुझे ये समझ आ रही है। हाँ जी। और यही असल फ्रॉड है। फिर कहते हैं करोड़ों कमाने, वो करोड़ों कभी नहीं आएंगे। वो 15 लाख कौन बदनसीब इनमें से इन्वेस्ट कर रहा है? किसके पास इतने पैसे हैं? ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, जब बेहोशी से उठता है तो फिर क्या समझाते हो उसे? ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 0 ਮੀਟਰ। इतना पैसा उसके पास है हराम का। ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 55 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਨੋਟ ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। कितनी की बुढ़ी, मतलब 60-70 साल की? 150 ਸਾਲ ਦੀ। आज आप सीरियसली बताएं। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। नहीं तो आपने कहाँ देखी? ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਦੇ ਰਿਹਾ ਦੀ ਮੰਮੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। उसके साथ मोहब्बत? ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਖੌਫ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ, अच्छा, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਖੌਫ ਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ना यार सीरियसली बताएं। ਬਲਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਦਾਦ ਆ, ਇੰਨੀ, ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਦਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆ?
वैसे मोहन भाई होर कोई ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸੜੇ ਨੋਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੂੜੇ 'ਚ 버ਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, मोहन भाई भी करेंगे। ਕੋ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਕਰੋ, ਫਿੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मोहन भाई ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕੋ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ। ਇਹਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਚਲਿਏ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? मुझे नहीं चाहिए। बैठो तो सही। बैठे। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। अच्छा, तरीका है वारदात तो बता दो चौधरी। अंजाम तो तुम्हारा जो होना है मुझे पता है, लेकिन तरीका वारदात क्या है? ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। तो उस पर कोई लंबी चौड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੈਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। तो फार्मेसियों पे कैसे एडवर्टाइज करोगे उसे? ਸਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। वो कैसे? ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ जी। ਸਾਰਾ ਦਾ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा, इस करोड़ रुपए में चौधरी तुम्हारे कितने हैं? भाई मेरे लिए हराम है जो उस करोड़ से मैं टैडी भी लवां। आज 15 लाख है ना, ये जो भी बंदा सदा मैंने दे देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वैसे अफ्तार साहब काम जरा मैनू मशकूक जिहा लगन दिया। खान साहब, मैं इस दफा आपको एक बात बता दूं। तू बकवास बात कर। अपना मोहन बेटा, क्या कहने? तुसी साइंसदान हो? ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। तो मोहन भाई को बम बम भी बनाया बेटा? ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕੋਮੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। और नहीं, ये दूसरे साइंसदान ने। अच्छा, ये शोलियां बनाते हैं। और तुसी देखिया बुर्ज खलीफा ते एकदम लाइटां बलदियां थल्ले उत्ते जांदियां। हाँ जी। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਭਾਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਗਲੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈਟ ਫਸਾ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਕਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਹੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਅੱਛਾ 20 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚਪੇੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। माशाल्लाह किन्नी की तनख्वाह साइंसदान दी? ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ। नहीं वो तो खजूरा लेंदे हो। वैसे अफ्ताब साहब साइंसदान चांद ते भी पहुंच जाते हैं। हाँ जी, चांद पे पहुंचे थे बड़ी गल है। तो बड़ी पुरानी बात है। ਇਹ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। स्पेस साइंटिस्ट? हाँ जी। क्या किया इन्होंने? ਉਹਦਾ ਚੰਦ ਤੇ ਕਤੂਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ। ਉਹ ਗੁੱਲਰ ਜਿਹਾ। यार अच्छी खासी थी वो, शी डॉग थी, लाइका। लाइका वापस आके साइंसदान नु पै गई। इससे स्पेस साइंटिस्ट कैसे हो गई है? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਈਕਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? क्या मतलब, उसको स्पेस ट्रेनिंग दी ਹਾਂਜੀ, थी? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਫਿਰ। एक मिनट मोहन भाई, हेलो, आ जाओ आ जाओ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी, ਬੁਲਾਓ ਜਲਦੀ। ਲਓ ਜੀ। ਓਏ ਪੁੱਤਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। अच्छा जी, आ जाए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए। ਲਓ ਆਏਗਾ। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅੱਗੇ। ਆਓ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਠੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਉੱਥੇ ਚਲੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। मैं क्या बड़ी देर करती बुला जी यार। ਆ ਫੜ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਇਹ ਜੀ ਪੈਸੇ ਬਹਿਨੋਈਆਂ ਨਾ ਕਰੀਦਾ। मैं क्या चोरी सारी गलबात हो गई है। हाँ जी। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨਾਲ। सारी जो पैकिंग हो जानी है ना शीशियां दी, ਜੀ ਜੀ। ते ये रातों रात फार्मेसियां ते पहुंच जानियां ने, ते एक दिन च विक जानियां। अच्छा, तो इसकी पेमेंट जनाब? पेमेंट जनाब एडवांस। सर ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आजकल उसकी डिमांड पूरी कोई कर नहीं सकता। आप चाइना को भी कहेंगे ना तो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। इनकी तो मुफ्ते लगने वाले हैं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। हालांकि कितना आसान है, घरों में बना लो यार। हाँ जी सर, आसान है बिल्कुल। बहुत आसान। स्पिरिट लें, उसमें एलोवेरा जेल डालें और दैट्स इट। बस सैनिटाइजर है तो आपने उसको क्या करना है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਹੋ, ਇਹਦੇ ਮੋਹਨ ਬਾਈ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। स्पिरिट अल्कोहल ही होती है बेवकूफ। ये साइंटिस्ट है भाई। ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? मैं ड्रग ऑफिसर हाँ जनाब। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਡਰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ये कौन चोरी अफसर की बिस्ती करी जा रहे यार। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਕੱਲਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤਰ ਪੜਾ। ਜਨਾਬ ਦੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एयरपोर्ट ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਸਟਮ ਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਡਰਗ ਵਾਲੇ ਸੌਂਗ ਸੌਂਗ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ, ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। मैं क्या जी आफ्ताब साहब, मैं एडा बड़ा अफसर हाँ, ये मेरे नाल क्यों हो रहे थे? तुम करप्ट हो, ये करप्शन है, ये कार्मा है। जो करते हो फिटकार की शक्ल में वापस आ जाता है।
अपना बेटा शादी हुई है और तेरा की मसला है बाबा? ये अपना किन्ने के पैसे लग जाते हैं महीने दे? करोड़ों रुपया का मालिक मैं, बड़ी जायदाद है पूरे पाकिस्तान से मेरी जायदाद है। बाकी जायदाद इस जैसों की बड़ी जायदाद होती है। ये शक्ल तो क्यों नहीं लगन दे? ये शक्ल से नहीं लगते, यही तो बात मैं समझाया जा रहा हूं तुम्हें, अकल के अंधे। तेनू कहंदे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम की हाल है कसरी है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना रश घर खैर है? ओ बस कोसरी पता की है, खान साहब दे नसीब जागन लगे ने। अच्छा इस हफ्ते फिर जागन लगे ने? कैसी तंजिया गुफ्तगू कर रही है? तुसी कौन हो जी? अफसर जी, बड़ा बड़ा अफसर। मैं तो चौधरी साहब लंघ नहीं पैसा, मैं क्या कचनार गोश्त पकाया है, पुछी जावा 2 रोटियां वाधू पका ला। क्या बात है, कसरी एक छोटा जिहा फूड पांडा भी है। अच्छा बड़े अफसर ने आ जेड़े चरसों के नहीं दसदे असली या का नकली। तेरी किसी बाल्टी का कुंडा टुटा हुए लिया हुणे ठीक कर देना। अरे छोटा सा मैकेनिक है बेचारा। यार बगैर तार तो इस्त्री चले हैं? हाँ वो किवें? ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਲੇ ਪਾਓ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਬਿੱਟੂ? अस्सलाम वालेकुम। बिट्टू भाई आ गया। हाँ, बस आसुद को ने अच्छा हाँ जी हाँ जी, जगह दियो ना। एक मिनट बिट्टू भाई, उठो खान साहब, उठो मेरा, उठो चल ਇੱਥੇ 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 ਬੋ, ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰੱਖ चौधरी ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆਓ ਆਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਆਓ। शुक्रिया। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਬਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਹਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ। ਜਲਦੀ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਹਾਂਜੀ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੋਹਨ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੋਹਨ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ 10 ਹੈ ਨਾ, 10 ਤੇ 5 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਲੱਖ ਆਣੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਈਏ। चौधरी किराया हमेशा एडवांस हुआ करता है। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਐਡਵਾਂਸ वाली ਗੱਲ ही करिए। आप भला ना करें, आप उनको एडवांस दें पहले। और बात सुनो, पहले उसको एडवांस दो। जी सर। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए हाँ ना। एडवांस दो और खान साहब को दो यहाँ पे। लेकिन खान साहब मैं एक लास्ट मिनट एडवाइस दे दूं आप, जी हुक्म। ना करें, ये रिस्क हराम है, इससे बेहतर है कि आप कुछ ना कमाएं। मैं नहीं चाहिए जनाब, 1 रुपया नहीं चाहिए। ਉਹ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਪਾਗਲ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਣਾ। आराम का पैसा खर्च नहीं लिया। और निढाल तू ठीक है? बहुत अच्छी बात, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी ये बात। मैंने तेरी गल समझ नहीं आई। निढाल हाँ जी, तेनू वेखना अपनी जवानी याद आती है। अस्तगफुरुल्लाह। मैं भी थथा होना समझ। सही हुआ आपके साथ, ये सही हुआ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। और नहीं चौधरी गल तो सुन, ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਪਲਾਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। लो फिर मैं थोड़ा इंतजार कर रहा, प्लांट लेके आने वाली गल करो। और कहंदे हो तो मिठाई मिठाई मंगा ला। और नहीं जिले आ जाएगा ना उसने ले आना मिठाई। कोई गल आओ जी, कौन भाई आओ। अच्छा हो गया। ओहो अस्सलाम वालेकुम। इधर इधर रास्ता बंद है। ओ कितने चले हो? ओए मैं मर गई। एडा तगड़ा पुलिस वाला तो 100 बंदा फाड़ लेगा। जनाब यार यार मेरी भांडिया की दुकान और मेरा 15 लाख रुपया और मैं किस तरह करा के लिए मैं सोचा थी 15 लाख देंगा, करोड़ रुपया आएगा, स्कूल खोलेगा और बड़िया फीसा आएंगी। और यार कोई तो ख्याल करो। ये बताओ ये पैसा कहाँ से आया? और बड़ी मेहनत ना कमाया है, कनाडा पूरा फिरे मैं, किथे नहीं मैं कम किता किथे। ये बताओ ਉਹ ਸਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ ਚੱਲ। और मेरी गल और मेरी गल तो और बिट्टू भी मरे। बिट्टू भाई, और यार मेरी गल बिट्टू भाई। ओ कुछ चौधरी ले आओ। ओ बिट्टू। ओ खुदा ओ नहीं है ओ चलो शुक्र है जी। अच्छा ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। बिट्टू तेन की हो गया पुत्र? बड़ा चंगा मुंडा, जो भी बेहोश होंदा 2-2.5 हज़ार की जेब चो जरूर निकलता। एक बारी ये 4-5 हज़ार बेहोश होया, मेरी लाख की दिहाड़ी लग गई। अरे बिट्टू ਅੱਛਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ, ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਇਹਦੇ। एक बारी बिट्टू दे बूट चो सप निकला और मजेदारी की गल होने पाया यानी पहने हुए बूट से सांप कैसे निकल सकती? बिट्टू दी करामात आ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। वे ना वे ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇਂ, ਮਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਖ ਨਾ ਬਣੇ। वे ना वे जुल्म करन दे हो। 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖ हाय हाय। ਦੇ। अच्छा तुम क्यों आ गई हो? तुम तो पीछे चलो। ਸਾਹ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਇਹਦੀ? ਕੇ ਜਾਵਾਂ। बिट्टू दी जेबों चो कूड़ा निकलन दिया। ਹਾਏ ਹਾਏ और उसने उसकी घड़ी उतार ली। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੋ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਵੇ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਉਈ ਅੱਲਾ ਉਈ अल्लाह। ए,
वाह जी वाह। मेरी बारी यही तो उसके पास पैसे ही खत्म हो गए। तू इन्हें चपेड़ा चपूड़ा मार ला। तो तीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि मगरमच्छ और सांप की खाल से कोरोना मास्क तैयार करने वाली कंपनी मंजरे आम पर आ गई। इसके भी मास्क बन रहे हैं सर। ब्रेन वुड नामी एक बंदा, फ्लोरिडा का रहने वाला, पता नहीं उसे क्या सूझी, लेकिन देखो ना उसने मीडिया स्टंट बना लिया कि एक चीज़ है जिसमें अट्रैक्शन है और साथ उसने लिखा भी है, तंबीह भी कर रखी है कि सिर्फ इस खाल के पहनने से आप कोरोना से नहीं बच सकते, इसके अंदर मास्क फिट होता है। ऊपर डिज़ाइन के तौर पे उसने, ये तो महंगा होएगा। ये जो पाइथन का है वो है $90 का, $120 का मगरमच्छ। ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ? ਬਾਤ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। हाँ सही है, जेडे हैगे आ वही लाई। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣਾ? वहां पे लगाते हैं, वहां पर लोग समझते हैं ना, उन्हें पता है जिंदगी इतनी मुश्किल है, पैसे के बगैर तो वो रिस्क नहीं लेते। ਆਹੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ? अगर आप बीमार होते हैं अमेरिका में तो इसका क्या मतलब ओए होए होए है? होए नुकसान। अगर आप वेंडर हैं, छोटे मोटे, आप कहीं भी डेली वेजर हैं और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और इंश्योरेंस अक्सर नहीं होती, नहीं हाँ जी, तो फिर बीमारी का इलाज तो वैसे ही भूल जाए ना, आप बीमारी से मरे ना मरे, भूख से मर जाएंगे। ਹਾਏ ਹਾਏ। तो इसलिए वो ये नौबत ही नहीं आने देते। ये हमारे यहाँ खुला डुला रिवाज है कि खानदान में कोई एक आध तो कमा रहा है ना, तो भूखों नहीं मरते। दूसरा ये कि अल्लाह मेहरबानी करेगा। अल्लाह मेहरबानी ऐसे ही नहीं करता, उसके उसूल हैं। क्या तुमने एहतियाती तदाबीर की? तुमने अपना जानवर कस के बांधा, फिर अल्लाह के सुपुर्द करके जाओ। ये नहीं कि खुला छोड़ जाओ और कहो जी खैर है, अल्लाह इनकी निगरानी करेगा। डॉक्टर साहब आप भी बकरी वाला मास्क बनवा लें। सस्ता क्या मिल जाएगा तो। सस्ता जा क्या होता है? वो लेते हैं जो काम की चीज हो। और बकरी का मांस कौन सा होता है? बकरी की खाल, गाय, बकरी, ये स्पार्टन्स इस्तेमाल करते थे। ये जो स्पार्टन्स थे ना, वो मुख्तलिफ जानवरों की खाल इस्तेमाल करते थे भालों के लिए, और तलवारों के, खंजरों के दस्ते वो भी हड्डियों से और खाल ऊपर लपेट कर ग्रिप बनाते थे। वाह, ये स्पार्टन्स का मामला है। ਸਪਾਰਟਨਸ ਬੈਨ ਹੋਈ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਸਪਾਰਟਨ ਢਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਦਿਆਂ ਨਾ ਮੇਖ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। और पता किस सन की बात है जी? सन 420 कबले मसीह। ये बुजकुशी भी करते थे सर? बुजकशी उस वक्त होती होगी, लेकिन बुजकशी वहाँ नहीं होती थी, ये मंगोलिया में होती थी, अफगानिस्तान में होती थी, गिलगित बल्तिस्तान में होती थी। तो बकरी मार के सिर थे पालन थे। बकरी नहीं, भेड़ होती थी बड़ी दफा का। बुज, बुज इज नॉट बकरी, बुज दिल। ये क्या होता? भेड़ के दिल वाला, बुजदार के दिल वाला। बुजदार जी, मतलब है भेड़ों वाला, भेड़ों का रेवड़ होता है जो, तो ये कबीला है बलोचों का, बुजदार। बुजदार साहब सर बड़े मासूम आदमी भी हैं, कोई बात नहीं करते, बहुत कम। अच्छा, बुजदार मासूम नजर आता है, ये डिसेप्शन है कि बहुत से हरीफ इसका शिकार हो जाते हैं। बहुत सियाना, बहुत समझदार आदमी। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। उस तो पहले क्या लुडियां डालता था? तुमने कहाँ देखा था उसे? आ सुन बड़ा ढोल दी सोटी वर्गा मुंह ते। सलीम आपने बुजदार साहब को देखा है? ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। बुजदार ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। मैं क्या पता नहीं कहने लगे बुजदार साहब साढ़े सीनियर ने यार। महफिल थिएटर में। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। अच्छा जी, इस हवाले से 1 अरब रुपया बहुत खटक रहा है जो हुकूमत ने मुख्तस किया था फनकारों के लिए। अब उसमें फिल्म के फनकार भी होने चाहिए थे, थिएटर के भी और टेलीविज़न के भी, मौसीकी भी इसका हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, वो पीटीवी के कुछ 4 प्रोड्यूसर्स को नॉमिनेट किया गया कि भाई आप मुस्तहकीन की लिस्टें हमें बना कर दें। अब कहा यह जा रहा है कि उन 4 मुजाहिदीन ने 4 दिन के अंदर अंदर लिस्टें भी फराम कर दी और सारा टेलीविज़न उसमें भुगताया। जिसने बाहर सिट्टे और छलियाँ भी लगा रखी थी ना, उसको भी फॉर्म दे दिया कि लो जनाब फिल करके दो। किसी फिल्म वाले को, मौसीकार को, थिएटर वाले को
दरखोरे इतना ही नहीं समझे। सर आप फनकारों की बात कर रहे हैं, यहाँ शरीफ मेडिकल सिटी जो है वहाँ डॉक्टर्स को सैलरीज नहीं मिल रही। वो बेचारे रो रहे हैं कि आपको पूरी सैलरी में से 20% दे रहे हैं गुज़िश्ता 4-5 माह से। और वो डॉक्टर अदनान जो थे अलमशहूर प्लेटलेट्स वाले, वो धमकियाँ दे रहे हैं लोगों को निकालने की। अधुर मानसा वर्गे बंदे ने ना फोटो फ्रूट मड़ी टंगी हुंदी ब्लैक एंड व्हाइट गर्मा बाज के मारे जो मैं समझा कहेगा ये हमारे दादा अब्बू ये तस्वीर गर्मा बाजी ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨਿਡਾਲਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ अच्छा जी हम मास्क की बात कर रहे हैं सर आजकल एक मास्क वाला बड़ा सोशल मीडिया पे वो एक्टिव हुआ हुआ है, सोने का मास्क किसने पहना? वो इंडियन जी जी वो एक ताजर है उसने गोल्ड का मास्क बनाया। तो इससे क्या तुम्हें कोरोना नहीं होगा? फ्लेक्स कर रहा है ना, पागल हो तुम। सर आपको याद होगा इंडियन ही था जिसने सोने की शर्ट बनाई थी और गार्ड्स भी साथ रखे थे, लेकिन आखिर पे वो कत्ल हो गया। अब देखे ना गोल्ड के कपड़े, शर्ट शूट पहनी साथ गार्ड रखे हुए, दावत नजारा है, दावत जुर्म है। ऐसे कपड़े जो बैंक में रखने चाहिए आप पहने फिर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਲੋਕੀ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਧੋਲਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ हो सकता है सर उसके पास लॉकर ना हो बेचारे के पास लॉकर क्यों ना हो बैंकों में आजकल लॉकर नहीं होते इसने कहा नहीं होते कितना बड़ा लॉकर चाहते हो? आओ मैं यूबीएल लेके चलता हूँ, जितने लॉकर कहते हो मैं ले देता हूँ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ UBL 'ਚ यूबीएल एचबीएल में भी है, यूबीएल में भी। यूबीएल जरा पसंदीदा बैंक है सर ऑल द वे यूबीएल जाने की जगह जो यूबीएल इनोवेटिव अपने प्रोडक्ट्स लेकर आता है, सर्विसेज लेकर आता है अपने क्लाइंट्स के लिए, डिजिटल यूबीएल डिजिटल बैंकिंग, ये इंतहाई इंप्रेसिव है भाई। मैं तो बहुत ही हैरान हूँ। यूबीएल डिजिटल ने जो सर्विसेज ऑफर किए हैं मैं समझता हूँ मिरेकुलस है। अरे जैसे UBL 'ਚ फोन करना पैंदा है? नहीं नहीं, इसकी ऐप है बड़ी आसान, डाउनलोड कर लो और उसके ऊपर घर बैठे बैठाए अगर आपको चेकबुक चाहिए, पहले होता था चेकबुक के लिए जाना पढ़ना है, वहां पे साइन होते हैं, आप घर मंगवा सकते हैं, अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, डिटेल्स मांग सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट मांग सकते हैं। एक छोटा सा ऐप वो डाउनलोड कर लें। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠ मोबाइल बैंक ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ मोबाइल बैंकिंग। और सर चेकबुक के साथ ही आप डेबिट कार्ड को भी इसी तरह घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर अगर आपका डेबिट कार्ड गुम जाए तो उसी ऐप के थ्रू आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। सर हमारे एक दोस्त ने लॉक किया था, अब पछता रहा है वो। क्यों? अब क्यों पछता रहा है? क्योंकि सर 3 दिन बाद वो वहीं से मिल गया उसे रीएक्टिवेट कर दे। सर अब उसके लिए वो फोन करता है, सारी लाइनें बिजी होती हैं। और जिस ऐप ने ब्लॉक किया है ना जी जी, उसी के आगे अनब्लॉक भी है। वो अंधा है मेरा दोस्त जी, अनब्लॉक करवाएं उसे। अन्नी ब्लॉक मिर्जा साहब आप किस बैंक में सफाई करते हैं? सर मेरा अपना अकाउंट है 3 बैंकों में। बड़ी अच्छी बात है मिर्जा साहब, लेकिन इस बात को गुस्से में क्यों कहते हैं आप? नहीं सर ये मानते नहीं है। इनको छोड़ो, मैं तो मान रहा हूं ना। ਸਰ ਜਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ATM ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਢਾ ਲਈ ਭਾਈ। जैसे आप अंगूठा लगाते हैं साइन करते हैं? मेरे साइन होते हैं सिग्नेचर। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 10,000 ਇਕੱਠਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। जी कैफी साहब आप फिल्म एक्सपर्ट हैं। मास्क ऑफ जोरो, द मास्क ਉਹ ਦਮਾਸਕ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਟਮ ਦੇਖਣਾ। वो भी मजे का होता है। फिर ये जो द मास्क ऑफ जोरो की तो पूरी कास्ट बड़ी लाजवाब, एंटोनियो बैंडेरास और एंटनी हॉपकिंस और कैथरीन जीटा जोन्स। अच्छा इन्होंने ये फिल्म ना कैथरीन जीटा जोन्स से देखी है। नहीं वो भी कम कैरेक्टर था इस फिल्म की, मेरा ख्याल है जानती हो। सलीम साहब जैकी चैन की फिल्में बहुत देखते ओए सलीम नहीं है यार, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ सलीम ही तुम निकलता। तीन को मुशद्दद क्यों कर दे? जैकी चैन पॉपकॉर्न खांदे खांदे ना एक ਇਹਦੇ भी छोड़ देता है। फिर एक और फिल्म थी जो आप मिस कर गए हैं मास्क से मुताल्लिक। कौन सी सर? द मैन विद द आयरन मास्क, जेरमी आयरन्स और लियोनार्डो डिकैप्रियो। मेरे साहब बचपन में आप कार्टून्स तो देखते होंगे बहुत शौक से। ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा जी मास्क की बात ना कर। सर वैसे कौन से सांप की स्किन इस्तेमाल करता था ये? पाइथन, ये जो बड़ा मोटा सांप होता है हाँ ना? जी। एनाकुंडा। नहीं, एनाकुंडा एक और सांप है, वो उससे भी मोटा, इतना मोटा होता है। ये पाइथन जो है उससे कदरे बारीक होता है, पतला, लेकिन बड़े सांपों में इसका शुमार होता है और इसकी खाल बहुत महंगी होती है। ये पालतू लोगों ने रखे थे लेकिन वहां पर नहीं रखे जा सके, बेशुमार खरीदारी हुई लेकिन उसके बाद छोड़ दिए गए।
चौड़ों में और स्वाम्प्स में, वहाँ स्वाम्प्स बहुत ज़्यादा है। अब उसने वहाँ का इकोसिस्टम तबाह करके रख दिया। वो कैसे सर? ये कि वहाँ की जो आबो हवा है, वहाँ का जो हैबिटाट है, वो उसके लिए सूटेबल ही नहीं था। उन्होंने रोडेंट्स खा खा के, रैबिट्स खा खा के, परिंदे तक उन्होंने चीज़ें छोड़ी, मुर्गा भी ख़त्म कर दी, क्योंकि वहाँ का माहौल नहीं ना इस काम के लिए। तो अब पैसे देती है फ्लोरिडा गवर्नमेंट कि आप मारे इन्हें, हम आपको मुआवजा दिया करेंगे। जैसे एक ज़माना था यहाँ पे सुअर के शिकार पे, मारने पे आपको हुकूमत पे किया करती थी। अभी टिड्डी दल पे हुआ है सर। जी जी। ਸੱਪ ਦੀ ਹਰ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਨ। ਆਪ ਆਫਤਾਬ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, मैं कौन हाँ? मेरी नस्ल की है। वो ये फिर दस दे तुम खपरू में से जो है ना सबसे जो फ्राइटनिंग सांप है उसका जिक्र कर रहा है। खपरू सर? हाँ, खपरू। तेरा काला नाग नहीं होता डरावना? काला नाग इतना डरावना नहीं होता जितना खपरा होता है। खपरा तो बड़ा खौफनाक बेमुर्शिदा होता है। बेमुर्शिदा आप कहते हैं। इसके करीब आप जाते हैं तो ये इस तरह पीछे रेंगता रेंगता जलेबी की शक्ल में जा रहा होता है कि आपसे डर गया और इसने आप पे अटैक इस तरह करना है जैसे गोली मिसाइल आता है जिससे, और माथे पे काटता है। हेलमेट पा लो। हेलमेट पहन के कोबरा के साथ पंगा कर लो। वो क्यों जी? क्योंकि वो थूक फेंकता है। बड़ी खौफनाक स्पिट होती है। वो अगर आपके जिस्म पर पड़ जाए ना तो आपको बहुत जलन होती है, फौरन धोना पड़ जाता है। और अगर आंखों में पड़ जाए फिर लग पता जाता है। मिर्जादाबाद जेड़े भी सापना पे ना वो ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਿਟ ਕਰਦਾ पर के स्पिट करके तो फिट करता है। और मैंने बड़े सांप पकड़े हैं, मैं सांपों से नहीं डरता जी। सांप इनसे डरते हैं। ਜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਛਣਕਣੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਛਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी। खबर है कि कोरोना वायरस के सबब शहर की सड़कें वीरान, भूखे बंदरों की लड़ाइयां मामूल बन गईं। इन्ने बंदर सारे कित्थों दी गल है? थाईलैंड। आप ये क्लिप देख लेना, इस कदर इबरतनाक हैं तो वो हजारों लेकिन लगता है लाखों। वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं क्योंकि टूरिज्म के ऊपर बेस करती है पूरी इकोनॉमी मुल्क की, और इन बेचारे बंदरों का तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। ये सर ते बांदरा ते कोरोना दा असर नहीं हुंदा? उनका इम्यून सिस्टम आपसे बहुत तगड़ा है। बांदरा दा? जी बांदरा दा। बांदरों को आप मजाक समझते हैं, लेकिन उनके पास फूड नहीं है। तो गुजरते हुए अगर कोई चीज फेंक दे तो एक छोटे से बन पे, एक डबल रोटी पे, एक केले पर वो आपस में मरने मारने पे तुल जाते हैं। ये जरा क्लिप दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। सर एक वक्त था तो यहाँ पे मंकी फेस्टिवल हुआ करता था, यानी बंदरों की दावत की जाती थी, 40-50 टन जो है वो खाना दिया जाता था। तो आज बेचारों का क्या हाल है? नहीं देखें, सब सफर कर रहे हैं, बंदर भी कर रहे हैं, इंसान तो खैर बहुत ही सफर कर रहे हैं ना। देखें कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन बार बार मैं भी तलकीन कर रहा हूं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, सब कहते हैं कि इसको पिकनिक मत समझो। बिल्कुल। जिन चीजों से मना किया गया ना, अगर आप वही करेंगे तो फिर वो मकसद फौत हो जाएगा। एक्सपर्ट्स आपको ड्रेस कोड पता क्या दे रहे हैं कि एक ही सूट रख लें, एक जोड़ा कोई सादा सा, उसमें बाहर जाए और आते ही शदीद गर्म पानी में धोएं उसको। यार सौण वाला सूट होंदा ना, बाहर जाने वाला भी एक रख लो। की है? हाँ तो क्या है, 2 रख लो, 3। तू एडा सियाना क्यों बनन डया विच? और पूरी कोशिश ये करनी है कि वही कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ मिक्सअप ना हो। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬਾਂਦਰ? मशक्कत करनगे अजे बांदर करनगे की हुन उत्थे जाओगा? बंदरों ने क्या करना यार, मैं छोड़ो। ये क्या है? वो मोटी मझ। ਸਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਵੋ ਚ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੱਬੂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, अरे राह ड्राइवर खरे तेन की कहंदा हुंदा सी। नहीं अब आप बहुत चुप हैं। यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये खुसरिया हाँ जी भाई, खबरदार कुड़ियां को गल कीती है तुसी। आया साडा बड़ा भरा ਉਹ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਟਾਂਗਿਆਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। बहुत ही गल नहीं करनी, मैं तन्नू दस्सिया जे। तुर्की च इहो जिहा कलांट वजाउंदे ने। ये पता है कहना क्या चाह रहा था? एक लिबास होता है जो पाइप बजाने वाले, किल्ट, दैट इज कॉल्ड किल्ट, और स्कॉटिश वो है, तो तुर्की में क्लांट बजाने वाले। तुर्की में जैसे किल्ट बजाते हैं। ठीक, और किल्ट बजाई नहीं जाती, पहनी जाती है। वो होती है इस तरह जैसे स्कर्ट के साथ एक लंबा सा कपड़ा एक साइड से नीचे लटक रहा हो। उसका जो चेक है ना,
वो रूबी के कोट से मिलता जुलता है। लेकिन सर ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਰਡ ਹੋਣੋਂ ਕੋ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਬੜਾ ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। और बेल्ट एक कदे नहीं होती सी, किसी ने सेबा बनया, किसी ने नाला बनया। नहीं वैसे इंतहाई पसमानदा बैंड वाले देखे हैं तुमने, इतने स्लिम स्मार्ट हैंडसम वेल ड्रेस्ड स्पिक स्पैन मैंने देख रखा। सर ये अबू है, ये मैं तो बुजुर्गों की गल कर रहे हैं। चिट्टी वर्दी नाल कैंची चप्पल। हाँ जी। और 15-20 दिन हो गए खान साहब ने पैर नहीं धोते। नहीं बब्बू दे अपने तस्वीर मैं देखी है। अच्छा हाँ शेर उतला रखी उते वाजा फड़िया है। और शेर थले कह रहा अच्छा बरात च ना ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀੜਾ ਕਮੀਨਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਵੱਡੇ ਵਾਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਚਾਵਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਲਣ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਲੋਕੀ ਮਿੱਕ ਝਾੜਦੇ ਨਾ, ਵਾਜਾ ਝਾੜਦਾ ਘਰ ਜਾ। ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਨਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ वाला। मुझे वाकई ये चीजें समझ नहीं आई कि आज तक गौर खौज करने के बावजूद ये राज ही है कि भैंसें और कुत्ते ये बैंड वालों के पीछे क्यों भागती हैं सर। और दूसरा नाली में पैर क्यों आता है? कुत्ते जड़े ना जी वो इन्होंने समझते चोर, क्योंकि इन्होंने सामान चुकया होंदा ना, वाजे भी जो चुके और नए लोग होते हैं। और भैंस सारा जड़ा बड़ा वाजा होंदा जिसे उन्हें इत्थे रख के पापा पापा अच्छा वो डर। और कैसी गल भैंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣ ਰਹੀ है। और वाजे वाली ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ दुकान देखोगे ना उत्ते चबारे च होएगी। हाँ इसकी क्या वजह है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ। और ये सर पक्की आइटम है कि इन्हां दी चुबारे ते दुकान और दूर इन्हां दी दुकान दी चाह ली। उन्हें फिर खिड़की खोल के ना कोई मेहमान आ गया तो उन्हें छोटी त्रंपट लेके उन्हें इतना ही करके देखा कि 2 चम्मच भाई वाह चीनी कम। साहब छा गया। क्या कहने आड़ू साहब इंतकामी मज हुंदी। दुकान चो ही निकलते हैं लाहौर कलंदर की टीम जा रही है। तू भी शुक्र कर लाहौर आ गया, नहीं तो 4 कप चुक के तेन खलियां पै जांदियां सी मरे। ना जिन्नी भी चाह वेची लेकिन वाजे वाले मैं दिती ही नहीं। आज कप लभदा नहीं, कसम खाए मौला दी कसम आए ही 2। और है आड़ू साहब और दर्जी ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੱਪ ਫੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਟਾਕੀ ਭਿਉਂ ਲੈਣੀ, ਸਿਗਰਟ ਝਾੜ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ। अच्छा ये बसों की छतों पे क्यों बैठते हैं? ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। क्यों? ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। बहुत सारे वाजे वाले जेडे ना छत ते बैठने की वजह नाल फौतगियां पड़ियां हुई हैं। वो कैसे? भाई जांदे जांदे बस वाले तो नहीं ना पता, उन्हें मार टाणा लगा सब उथे लम्बे रह गए। और मुंह आगे करके नहीं बंदे पीछे करके बैठते हैं, पीछे चपेड़ा वज दिन थोड़ा। और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ। और सब तो अच्छा बंदा वो लगता जेड़ा आ के रोटी खोल गई जी। अच्छा टुरे चलो क्यों कहते हैं? ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੜਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। तुरे जांदे कौन देंदा था? तुरे जांदे ते तुरे जांदे ते तुम्हें तो नहीं पता। बब्बू इतना माइंड क्यों कर रहे हो? देखो यार ये देखो यार नहीं मेरा साथ दे। कोई इस तरह का आपका उर्दू ना बोलने दी कुत्ते वाली ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਲ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अमानुल्लाह की याद ताजा हो रही। इतनी शानदार ऑब्जर्वेशन उसी की थी। क्या बात। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੈਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਛੈਣੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਥੈਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੇ 250 ਦਾ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। क्यों? ਜਿਸਲੇ ਬਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਸੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ 35 40 ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੰਜ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ 100 ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। वो जो रिंग लीडर होता है। ਜੀ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੀ, ਵਾਜੇ ਉਹਦੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਿਵਲ ਚ ਵਿਚਾਰੇ।
भाई कमाल है, पूरे का पूरा एक दबिस्तान है ये। और ज्यादातर ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਇੰਜ ਚੜੇਗਾ। ਔਰ ਸੀੜੀਆਂ ਇੰਜ ਉਤਰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਵਜਾਦੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਭਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।